Here question number first, there are how many types of agroclimatic zones in India? Then you should all know about that. 15, 17, 20, 21. Then answer will be 21. Okay. Then move to the next question. In next question, which of the following is not a biocontrol agent? There is a 4 option: VT, Trichogramma, Rhizobium and Pseudomonas. In all those 4, only the option will be correct option will be Rhizobium. Move to the question number 3rd. Question number 3rd, this is the very important question according to point of view. Soil structure can be improved by application of, then answer will be your super phosphate. In all these 4 options, answer will be super phosphate. Question number 4, which among the following does not belong to the welfare scheme for the farmers? There will be 4 options. You have to opt only one: Kisan Credit Card Scheme, Self Help Bank Linkage Program, Employee Referral Scheme. None of these. Then all these 4 options, correct answer will be Employee Referral Scheme. Okay. So this type of question is generally asked in the Edu Haryana. Okay. Then move to the next question. Question number 5, which nutrient deficiency are responsible for fruit cracking? Then you all know that mostly fruit cracking is caused by the deficiency of boron. This is the important question. Okay. Question number 6, queen of spices. You all know cardamom. Okay. So move to the next question. Edible part of guava is, here the 4 option will be given: thalamus, pericarp, both A and B, none of these. Then if we talk about the guava edible part, both we eat. Okay. So move to the next question. Which of the following belong to guava family? Guava family, you should always remember, don't forget, Mitraceae family. Okay. Next question, seedless variety of guava. Seedless variety, all those 4 you don't confuse. Okay. Lalit, Hafsi, Behat, coconut, all of these. No, don't put the answer all of these. Question answer will be Behat, coconut. Okay. Move to the next. Mango is also known as king of fruits, national fruits, bathroom fruits. If this type of question will come, you have to opt all of these, because you all know that mango is king of fruits, national fruits of India, bathroom fruits also. Okay. Mango belongs to which family? You all should know Anacardiaceae. Okay. No, okay. Poaceae comes in the cereal crops. Okay. So you have to opt the correct option, Anacardiaceae. Which nutrient helps in biological nitrogen fixation? You all know that biological nitrogen fixation, all these 4 options: nitrogen, phosphorus, molybdenum, boron. Sorry. Then you have to opt option. Correct option will be molybdenum. Okay. पार फोटो, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या होता है. ठीक है. व्हाट इज द पार रेंज ऑफ. ओके. पार रेंज, तो आप सभी लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक जो होते हैं किस रेंज में होते हैं. तो आपके लिए ऑप्शन है 400 to 700 नैनोमीटर के आसपास होते हैं. ठीक है. द रेंज ऑफ पार होता है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस रेट होता है. ठीक है. इन प्लांट्स. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40, सिल्ट इज इंटरमीडिएट बिटवीन. देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी सैंड एंड क्ले इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट. तो ठीक. क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C3 पाथवे. C3 पाथवे में आपका फर्स्ट जो एक्सेप्टर होते हैं रूबिस को. ठीक है. कार्बोलेज. ठीक है. ये होते हैं. ठीक है. PEP नहीं होते, कार्बोलेज ऐसा, और ये सब सारे ऑप्शन है आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा. ठीक है. ओके. देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सीमेंट वर्क्स ऑन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सीमेंट वर्क्स ऑन द 2 maize and wheat. You should also know about what is the headquarter of cement. Okay. Then move to the next question. Question number 70, which of the following is highly salt tolerant fruit crop? This is the very important question asked in the AFO exam also. Every years the AFO asks. Okay. And then in EDO question pattern will be same. Okay. Date palm. Okay. Don't put mango. Mango is also a salt tolerant fruit crops. Okay. But don't put, if all these options will be given in the board, then you have to opt
क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर फर्स्ट डेट फार्म. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. Anemometer are used to measure. Anemometer always used to measure wind velocity. So move to the next question. 18 question now. Nearly 75% of the total gaseous mass of the atmosphere and all the water vapor are concentrated at. तो आपको बताना है कि जो 75% जो टोटल गैसेस मटेरियल मास है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर में कहाँ पर कंसनट्रेट करते हैं, लाई करते हैं. ठीक है, तो आपको ट्रोपोस्फेयर में करते हैं. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में करते हैं. ठीक है, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इफ़ द फार्मर हैज ओनली वन इरीगेशन इज अवेलेबल फॉर व्हीट क्रॉप एट विच स्टेज इट इज़ रिकमेंडेड. अगर आपके पास किसानों को बताया जाता है कि आप भी गेहूं का खेती कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक ही इरीगेशन करने के लिए आपके पास क्षमता है, तो आप कौन सी दीजिए? तो CRI स्टेज दीजिएगा हमेशा. ठीक है, ठीक है. क्राउन रूट इनिशिएशन में जो कि 20 to 21 डेज पे होते हैं. ठीक है, जनरली 21 डेज पे देना ही पड़ता है, नहीं तो इससे आपका कि जो है प्रोडक्शन कम हो जाएंगे. ठीक है, चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 नंबर क्वेश्चन है डिजीज ऑकरिंग रेगुलर इन द सेम एरिया इज कॉल्ड. जहाँ पर रेगुलर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज होते हैं. ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आपका पोटैटो रॉट डिजीज जो है आपके दार्जिलिंग में होता है वो हमें हर साल होते हैं, तो आपका एंडेमिक ले सकते हैं. ठीक है, इरेगुलर अंतराल पर होते हैं तो आपका एंडेमिक इस टाइप की. ठीक है. द ऑरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो, तो आप सभी लोगों को पता है ऑरिजिन प्लेस ऑफ इंडो बर्मा रीजन. ठीक है, दिस इज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. द कमर्शियल प्रोपागेशन ऑफ मेथड. हाँ, कमर्शियल प्रोपागेशन मेथड में आपको सारे ऑप्शन दिए जाएंगे. विनियर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, सीड प्रोपागेशन, ऑल ऑफ दीज. देन करेक्ट ऑप्शन विल बी विनियर ग्राफ्टिंग. डोंट फॉरगेट to like, subscribe and share my channel. Okay, if you like this channel you can subscribe my channel also. Sweetest variety of mango. Sweetest variety if we talk about Chausa, Amarpali, Alfonso, Dasari, then in the all these four option correct option will be Chausa. This question is very important. Okay, don't forget to remember. Question number 25. High density planting 2.5 into 2.5 meter ऑफ मैंगो वैरायटी इज डन इन द, मतलब सबसे घनत्व वाली जो मैंगो की वैरायटी है वो कौन सी है? तो आपको अमरपाली इसका याद रखना है. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में. द बोटनिकल नेम ऑफ गुआवा. गुआवा का आपका बोटनिकल वनस्पति नाम क्या है? तो ऑलवेज रिमेंबर सीजियम गुआजवा. ठीक है, ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन देखिएगा. ठीक है, ताकि आपका जो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आपको स्पेलिंग मिस्टेक में करेक्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए सीडियम गुआजवा इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रूट टाइप ऑफ गुआवा. फ्रूट टाइप ऑफ गुआवा, यू ऑल नो दैट गुआवा का फ्रूट टाइप वेरी होते हैं. ठीक है. द फ्रूटिंग टाइम ऑफ मृग बहार. दिस इज द इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फॉर द लेवल ऑफ ADO. ओके. देन जो मिडिक बहार में जो फ्लावरिंग आते हैं वो आपके आते हैं नवंबर से जनवरी के बीच में आते हैं. ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कैन स्पेसीज इज कॉल्ड एज नोबल कैन. नोबल कैन को किसके बोलते हैं? सैक्रम ऑफिसनेरम को बोलते हैं. ठीक है, एस वेंकटेश्वरमन जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ पे काम करके रिसर्च किया था. ठीक है, तो उन्होंने ठीक जो गेन होता है उसमें और हाई शुगर कंटेंट के ऊपर काम किया था. ठीक है, इसलिए नोबेल कैन इसको कहते हैं सैक्रम ऑफिसनेरम को. ठीक है, बाकी सैक्रम बारबेरी ये सब ने सैक्रम चाइनीज, तो चाइनीज वेराइटी. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. द बोटनिकल नेम ऑफ ट्रॉपिकल केन. ओके, बोटनिकल नेम ऑफ ट्रॉपिकल केन को भी सैक्रम ऑफिसनेरम को ही कहते हैं. ठीक है, तो ये भी आपके कन्फ्यूजन क्वेश्चन है. ठीक है, ध्यान से रखिएगा. ठीक है, 4 ऑप्शन है, सैक्रम साइनेसिस एंड सैक्रम बारबेरी, ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज पर ऑप्शन नहीं मानना है, सैक्रम ऑफिसनेरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं. बेटा वल्गरिस इज द बोटनिकल नेम ऑफ sugar cane, sugar beet, sunflower, carrot. All these options are given, but we have to choose only correct option. Then correct option will be sugar beet. Okay, Beta vulgaris is also the botanical name of sugar beet. अब which of the यहाँ पर क्वेश्चन which of the following is essential component of nucleic acid and protein. तो यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड के प्रोटीन के लिए है आप कमेंट करके बताइए. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए. ठीक है, इसेंशियल कंपोनेंट जो है आपका यहाँ पर फॉस्फोरस ही है. ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है. ठीक है, डोंट वरी. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर भी इसका फॉस्फोरस ही. ओके,
देन अब मूव करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी सुटेबल फॉर क्रॉपिंग एज व्हीट मिक्स क्रॉप। व्हीट के साथ कौन सी मिक्स क्रॉप लगाते हैं, तो मस्टर्ड लगाते हैं। इसका रेशियो क्या होता है 9:1, मतलब अगर 9 kg अगर हम मस्टर्ड लगाते हैं, सॉरी गेहूँ लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, तो उसके साथ एक आप मस्टर्ड का 1 kg डाल सकते हैं, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। चलिए मूव द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन इज नोन एज, आपका जो शुगर की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, तो हमेशा आपको एरो हमेशा याद रखें, ठीक है, एरो, ठीक है, जो ऊपर देखते होंगे आप, जिन लोगों ने देखा होगा शुगर कैन में कि ऊपर में बाली की तरह आ जाते हैं उजले की तरफ, ठीक है, मूछ पूछ की तरफ बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसे एरो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टीवेंसन 96 डिफाइन द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सेक्रम ऑफिसनेरम कहाँ था, ठीक है। स्टीवेंसन के अनुसार 1965 में आपका सेंटर ओरिजिन ऑफ सेक्रम ऑफिसनेरम कहाँ था, तो आपके न्यू गुनिया या इंडो बर्मा चाइना बॉर्डर पर था, ठीक है। ऑप्शन में ये रहेगा, कन्फ्यूजन तो नॉर्थ इंडिया नहीं मारिएगा, इंडो बर्मा या न्यू गिनिया चाइना, ठीक है, ये मारिएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यही है। वाइडली कल्टिवेटेड व्हीट स्पेसीज इन इंडिया आफ्टर टिटकम ड्यूरम कौन है, तो टिटकम डाइकोकम है, ठीक है, जो आपका सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड करने वाला स्पेसीज है टिटकम ड्यूरम के बाद टिटकम डाइकोकम है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आप लोग कमेंट करिएगा, डोंट फॉरगेट टू कमेंट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दिस इज लेवल। विच ऑफ द फ्लोइंग वैरायटी ऑफ शुगर कैन इज ईयरली मैच्योरिंग वैरायटी, तो ईयरली मैच्योरिंग वैरायटी के लिए क्या है आपके इस ऑप्शन है CO 419 है। CO का मतलब कोयम्बटूर होता है, ठीक है, इसका ब्रीडिंग वहाँ करवाया गया था, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा CO 419 का आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपका शुगर कैन का ईयरली मैच्योरिंग वैरायटी है, CO 419 हमेशा इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए डायरी में। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन 38। इन शुगर कैन हाउ मेनी सेट्स ऑफ द 3 बर्ड्स पर हेक्टेयर व्हेन रीज आर 1.2 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दिया गया कि जो 3 आँखों वाली जो लगाते हैं गन्ने की, जो हम सीडलिंग लेते हैं, तो उसमें किस इतना हमारा जब डिस्टेंस है 1.2 मीटर अपार्ट, तो आप रीज का तो आप हमें लगाना है, तो कितने सीड की रिक्वायरमेंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम शुगर के चारों ओर खेत की तरफ जो 1.2 मीटर जो है हम स्पेसिंग छोड़ देंगे, ठीक है, RE बोलते हैं, ठीक है, एम्बैकमेंट, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इसका आंसर हुआ कि हमें 25,000 सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्लोल ट्रीटमेंट ऑफ कैंट सेट्स बिफोर प्लांटिंग इज इफेक्टिव में मेजर फॉर कंट्रोलिंग ऑफ, ठीक है। तो आपको हम बता दें, देखिए आपका जो इसमें है रेड रोट डिजीज, पायरिलिया इंसेक्ट, स्मॉट डिजीज, ऑल ऑफ डिजीज, तो इसमें क्या करते हैं एजोल ट्रीटमेंट होता है जो कि हम करते हैं बिफोर प्लांटिंग, ठीक है। तो शुगर कैन में तो इसके चारों ऑप्शन के लिए करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए तो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्रोमोजोम नंबर ऑफ सेक्रम ऑफिसनेरम का क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, तो आप लोग बताइए। इसका आंसर है 80 होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है 80 है, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 80 है ऑप्शन, ठीक है, बाय मिस्टेक गलती हो गया। लेकिन इसका जो अगर मॉडर्न कल्टीवार्ड्स की बात करें तो उसमें 110 से 120 क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोटनिकल नेम ऑफ पोटैटो इज ए सोलेनम टुबेरोजम, ओके। ऑप्शन विल बी, ऑप्शन फर्स्ट है सोलेनम टुबेरोजम। आप सबको पता है कि पोटैटो का बोटनिकल नेम क्या है, तो सोलेनम टुबेरोजम है, ठीक है। आप ऑप्शन में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो का ओरिजिन हमेशा याद रखिएगा साउथ अमेरिका, पेरू, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज देन आपको मैक्सिको है, ओके, जिसको सेंट्रल अमेरिका ही बोलते हैं, ठीक है, डोंट फॉरगेट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ पोटैटो प्लांटिंग इज, तो हमेशा क्या करते हैं रीज एंड फॉरो मेथड पे आलू लगाते हैं, पोटैटो लगाते हैं। जैसे आप खेत में जाते होंगे तो आपको देखते होंगे कि लाइन बाई लाइन सोई हो रहते हैं, पट्टी बनाए हुए रहते हैं, तो उसे रीज एंड फॉरो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्थिंग ऑफ इन पोटैटो इज डन एट, हाँ, अर्थिंग हम मट्टी कब चढ़ाते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे पोटैटो में भी अर्थिंग करते हैं, तो 30 से 45 दिन के अंतराल में करते हैं, ताकि उसमें जो एरेशन हो और अच्छे ग्रोथ हो, ठीक है, आपका ट्यूबर का ग्रोथ अच्छा हो, ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 45। रोड डिजीज इन पोटैटो इन इंडिया इमर्ज्ड फ्रॉम मुंबई, जगन्नाथ, दार्जिलिंग, चंडीगढ़। तो हमेशा याद रखिएगा ये इंडेमिक डिजीज है, रेगुलरी जो होते हैं उसे, इसमें क्या है कि आपको बैन किया गया है, ठीक है,
इंडिया के जो सीड, इंडिया में दार्जिलिंग जो प्लेस है वहाँ का आप सीड को यूज नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन विल बी दार्जिलिंग, ओके। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट करनाल, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, जोधपुर नहीं ऑप्शन लगाना, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट करनाल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना इज, आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, बनाना इज क्या है, ऑटो टेट्रापोलाइड है, ठीक है, या ऑटो टेट्रापोलाइड है, या ऑटो ट्रिप्लॉइड है, या एलो ट्रिप्लॉइड है, या एलो टेट्रापोलाइड है, ठीक है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर विल बी ऑटो ट्रिप्लॉइड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इन इंडिया इज मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, ओके। तो सबसे ज़्यादा इरीगेशन इंडिया कौन, इरीगेशन में क्या है, सबसे ज़्यादा इरीगेटेड हम वीट को लेते हैं, राइस को नहीं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट टू द मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिजीज ऑफ राइस कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है। तो आप कितने, आप इसके रेंज होते हैं 5 kg कॉपर जिंक सल्फेट कर लेके आप इसमें लाइम में मिला के आप स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो इसमें जल्दी से कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, आपको अर्ली स्टेज में दिख जाते हैं, ठीक है। आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग यू विल सी द डिफिशियंसी ऑफ खैरा डिजीज, ओके। तो जिंक सल्फेट का स्प्रे करके हम कंट्रोल कर लेते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल, द प्लांट सेल में कौन से पाए नहीं जाते हैं, आप सभी लोग स्टार्च पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं, ग्लाइकोजिन नहीं पाया जाता, ग्लाइकोजिन, ओके, फ्रुक्टोज पाए ही जाते हैं, ठीक है, ओके। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्लाइकोजिन। अब मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ कॉटन, कॉटन का फैमिली मालवेसी होते हैं, ओके। हमेशा याद रखिएगा, कॉटन फैमिली ऑफ कॉटन मालवेसी ग्रामनी नहीं होते हैं, ठीक है, रूटेसी भी नहीं होती। सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम, सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाउंडेशन सीड एंड टैग साइज ऑफ फाउंडेशन सीड इज 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 15 गुने 7.5 सेंटीमीटर का होता है टैग साइज, ओके। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, और टैग कलर होता है वाइट होता है फाउंडेशन। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 53, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट कानपुर है, ठीक है। आप हमेशा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट कानपुर, कोयम्बटूर में ब्रीडिंग है, ठीक है, ब्रीडिंग है, ओके, नेशनल डोंट फॉरगेट, ओके, कानपुर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोफेज विच इज करेक्ट, प्रोफेज में क्या होता है, इलोंगेटेड थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। ये हमेशा डार्कली स्टैंड नहीं होते हैं क्योंकि डार्क माइटोसिस में दिखा जाता है, ठीक है। क्रोमेटिक्स आर मोर कंडेंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको मियोसिस माइटोसिस से रिलेटेड आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज थायमिन को बोलते हैं, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डिलीशियस इज वैरायटी ऑफ, रेड डिलीशियस वैरायटी किसका है, तो एप्पल की है, ओके, डोंट फॉरगेट रेड, तो रेड डिलीशियस टमाटो का नहीं है, ठीक है, हमेशा रेड डिलीशियस एप्पल की वैरायटी। इन विच टाइप ऑफ सॉइल लो परमेबिलिटी इज प्रेजेंट, तो ये अल्कली में पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड होइंग इज रिकमेंडेड फॉर, ब्लाइंड होइंग किस में करते हैं, ब्लाइंड होइंग शुगर केन में करते हैं, पोटैटो में नहीं करते हैं, ठीक है, ग्राउंड नट में नहीं करते हैं, नहीं तो आपका जो आपका सीड है वो जो उसमें जो फ्रूट लगेंगे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और वेट में करेंगे तो आपको ब्लाइंड होइंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू विच इज ए फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरियम, PSB इज द मोस्ट सोलबलाइजिंग बैक्टीरियम, ओके, PSBM नहीं है, फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच इज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, विच इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम तुमीफेसियन, ओके, इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। पिंक बॉलवर्म इज ए पेस्ट ऑफ, यू ऑल नो दैट पिंक बॉलवर्म इज ए पेस्ट ऑफ कॉटन, नॉट मस्टर्ड, ओके। साइट्रस कैंकर इज caused by bacteria, citrus canker is caused by bacteria, always remember, because citrus canker is found in many fruits and vegetables, okay. Which one is not a monosaccharide in nature, okay, तो इसमें कौन सी मोनोसेक्राइड का नेचर नहीं है, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है राइबुलोज, ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी राइबोज, नॉट लैक्टोज, ग्लूकोज, नॉट राइबुलोज, ओके, नॉट ए मोनोसेक्राइड, ओके।
Move to the next question. Which one is the clay mineral? Montmorillonite, kaolinite, chlorite, vermiculite. Then the clay mineral में जो है इसमें कैलोनाइट है, ठीक है, और मोंटीमोरलाइट नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन इज मैक्रोनी वीट? ओके, तो टिटकम ड्यूरम आपको करेक्ट ऑप्शन होगा, टिटकम डाइकोकम नहीं है. ओके, गलत ऑप्शन है, ठीक है. टिटकम ड्यूरम इज द आपका विच वन इज मैक्रोनी वीट. ओके, क्वेश्चन नंबर 66. इन राइस क्रॉप विच बायो फर्टिलाइजर इज कॉमनली यूज? एजोला. इन बायो फर्टिलाइजर rice crop we mainly use azolla. Azotobacter are used in sugarcane, okay, and wheat. Next, the red color of tomato is due to the presence of the red color of due to lycopene के कारण होते हैं. करेक्ट ऑप्शन. ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ओके, विच इज द मोनोफेगस पेस्ट? येलो स्टोन बोरर इज द मोनोफेगस पेस्ट. हमेशा याद रखिएगा. राइस, सिस्पा, गॉल मिर्च, all three options are the polyphagous insect pest. Okay, in rice it is a very important question according to the ADO. Silver soot is due to, silver soot is always due to gall midge. Okay, silver soot in rice, okay, occurs. Gall midge, silver like a structure formed and gall ghega iodine deficiency, like okay, in plant you will say symptom. 70. Question number 70. Spongy tissue is a physical disorder of, spongy tissue is a physical disorder of mango. Okay, this is the very important question. Loose amount of wheat is internally seed borne. Correct option will be correct. Internally seed borne. Don't put externally seed borne or soil borne seed. Okay, because in exam lots of candidate in the hurry mood they correct they put the wrong answer. Externally seed borne. Actual answer will be internally seed borne. Move to the next. Blue revolution is related to fisheries. Okay, fish science. Oil seed is revolution is another. Pulse is another. No option. Okay, fisheries. Blue revolution is related to fisheries. TISEM was introduced in extension question. Very important. TISEM was started in the year 1979. This is a very important question. Okay, move to the next question. 74. A day neutral plant. Maize is a day neutral plant. Correct option. Maize and sunflower is a day neutral. Rest all are the wheat is a long day plants. Okay, rice is a short day plant. In question number 75. In pulse crop, which fertilizer is advised to vessel application? SSP में आप जो है pulse crop में जो सल्फर SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट वी अप्लाई फॉर द इन वेसल एप्लीकेशन में देना जरूरी है. ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 76. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 76. द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड इन ईयर 1900 टू 2000. करेक्ट ऑप्शन. ओके, 1999 से 2000 के बीच में आया था. ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. मूव टू द नेक्स्ट important question. This is the very important question. Flavor saver is a variety of tomato. Flavor saver is a variety of tomato. ठीक है, ये किसके कारण? बायोटेक्नोलॉजी में इसके क्या किया गया था, जीन को आपको इसमें मैनिपुलेट करके इसका, ठीक है, आपको बनाया गया था. ठीक है, ताकि इसमें जो है कि आपका इस स्टोरेज ज़्यादा दिन तक कर सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, 78. Which of the most effective herbicide to kill the Pilot malaria? Oh, okay, sorry, question in a question type mistake. Which is the most effective herbicide to kill the Phalaris minor will be the question. Okay, but here the option 4 option 2, 4D, isoproton, DDT, all of these. Then proteurone is the correct option. Okay, move to the question number 70. Which of the following insect is responsible for spreading the bunchy top disease of banana? Then bunchy top of banana disease, B से banana. You also always remember there is a trick. B से banana, bunchy top, B से bunchy, and trick for aphid. The BA, always remember trick BA. Bunchy top is caused by BA, aphid, not trip horsefly. Okay, this is the very easy way trick to understand. Move to the next question. Question number 80. Wheat protein is called gluten, not ricin. Gene is found in the maize. Okay, opaque2 protein which that was used in the
QPM variety of maize. Okay. Move to the next question number 81. In India, SID Act was enacted in the year 1966. Okay, SID Act was enacted in the 1966. Okay. And move to the next. First agriculture university in India was JB Pantnagar. Okay, Govind Vallabhbhai Pant Agriculture University. Okay, JB Pantnagar. Okay, not Hisar, not RPC, Viewer. Move to question number 83. Select a crop which is most commonly used for green manuring. For the green manuring, we use dhaicha, not a sugarcane option. Okay, correct. Select the green manuring. We mainly use dhaicha. If the option will be dhaicha and other option will be moong and another one more, than both will be answer. But here the correct option will be dhaicha. Question number 4. The plant with the staminate and pistil flowers on separate individual plant. जिस प्लांट में आपका स्टैमिनेट एंड पिस्टल अलग अलग पाए जाते हैं उसे डायोसियस कहते हैं। मोनोसियस में आपका मेज ले सकते हैं जिसमें मेल एंड पिस्टल, स्टैमिनेट एंड पिस्टल सेम ही प्लांट्स में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे मोनोसियस एंड डायोसियस, जिसके पे पिस्टलेट एंड स्टैमिनेट अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल प्लांट में। Move to the question number 85. Citric acid is produced by, citric acid is always produced by Aspergillus niger. Always remember trick ACN also there is a trick. Okay, move to the question number 86. For given goods price consumption curve will be backward slope. Always the given goods price consumption curve जो होगा always backward slope में होगा. Okay, not a horizontal downward. Question number 87. Transpiration is measured by, transpiration is always measured by PT. Option potometer. Trick is poto, PT, transpiration poto. Always remember poto means ट्रांसपायरेशन का पोटना है। ठीक है, तो पोटना के मतलब आपको पोटोमीटर हो गया करेक्ट ऑप्शन। 88. विच दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड mosaic model of cell membrane is given by Singer and Nicholson. Always remember, this is very important. 89 question. How many photons are required to produce one molecule of oxygen? There are one. For the producing of one molecule of oxygen, we need 8 photons. Okay, to produce one molecule of oxygen. Okay. Question number 90. Photorespiration is high in. फोटो रेस्पायरेशन इज हाई इन, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन इज ऑलवेज हाई इन। सो आपको बता देते हैं फोटो रेस्पायरेशन ऑलवेज जो हाई होते हैं आपको C3 प्लांट में होते हैं, C4 में हाई नहीं होते हैं। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन, इसलिए यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है आपका कट जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन विल बी राइस। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी राइस। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? ऑलवेज PA, always remember PA, Anton de Vere, plant pathology father, PA. Okay, always there is a trick. Okay, move to the question number 92. Geometric mean is always less than, always than. Here the geometric mean is always than. यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया, लेस देन। ठीक, ऑलवेज arithmetic mean. Okay, correct option, not harmonic weighted mean. Okay, this is the statistical question. Okay, move to the question number 10. When the frequency distribution is not symmetrical about mean, it is said to be skewed. Okay, skewed क्या होते हैं, ग्राफ बनते हैं। ठीक है, आप जानिएगा कर्टोसिस मोमेंट से उसके बीच में जो स्क्यू बनते हैं। ठीक है, स्क्यू बनते हैं। ठीक है, तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल नहीं होते हैं तो आपका ग्राफ इट मीन साइड को क्या होते हैं, स्क्यूड होते हैं। कर्टोसिस में आपका मिडिल पोर्शन के जो लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94. लोकल कंट्रोल इज नॉट अप्लाइड फॉर द डिजाइन। तो लोकल कंट्रोल किस में नहीं यूज होता है? CRD में, RBD में यूज होते हैं। ओके, लोकल कंट्रोल 3 प्रिंसिपल। ओके, लोकल कंट्रोल के यूज किस में होता है? CRD में होता है। 3 प्रिंसिपल कौन है आप अपने कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 95. द मिनिमम ईडर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेट टू बी एटलीस्ट। जो मिनिमम ईडर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 12 होते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। अगर आपके पास लेस देन, अगर आपके पास नहीं होंगे रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन मिला के ईडर ऑफ डिग्री 12, तो आपके उसके नीचे आप कोई भी रिसर्च प्लॉट नहीं कर सकते हैं, कोई भी डाटा नहीं ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ईडर डिग्री मिल जाएंगे लेकिन कम नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 96. विच टेस्ट इज यूज फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन। तो जब 2
टेस्ट का जो मीन का डिफरेंस किससे निकालते हैं, एफ टेस्ट से। जेड टेस्ट किसके लिए लगाते हैं, ज़्यादा मोर देन के लिए करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट में कितने मिनिमम होने चाहिए, 50 होने चाहिए। ओके, मूव टू डी क्वेश्चन नंबर 97। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लैक्चुएशन। जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है वो किसके सबसे कम अफेक्टेड होते हैं फ्लैक्चुएशन के कारण, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 98। फिनोमेनन इन विच 2 और मोर एम्ब्रियोज प्रेजेंट विद इन सिंगल। ओके, ऐसे फिनोमेनन का बताइए। फिनोमेनन मतलब घटना होती है जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं एक ही सिंगल सीड में, जिसमें पोली एम्ब्रियो बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, जिसको मैंगो में पाया जाता है। आपका एग्जाम्पल। ओके, याद रखिएगा। मिक्स चैम्बर आर कॉमनली यूज फॉर, मिक्स चैम्बर आर जनरली यूज फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग। ओके, ग्राफ्टिंग, बडिंग, शूटिंग के लिए नहीं, आपको रूटिंग। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 100 आप कमेंट करके बताएगा इसका करेक्ट आंसर। ए लेग्यूम इन प्लांट विच फ्रूट इज सिंगल सीडेड इमेज कंस्ट्रिक्टेड और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आई विल टेल यू द नेक्स्ट सेशन। ओके, द करेक्ट ऑप्शन आंसर। प्लीज आंसर मी through a comment box. If you this is the first session of Haryana Edu. If you like, you can subscribe and comment me for the more mock test free. Okay, for today, thank you so much. Bye bye.